ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है इट इज कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोएल्केन्स. सो वी हैव सीन कन्फर्मेशंस ऑफ द ethane, propane and butane molecule. Okay, so you know that conformations are a result of the rotation through the carbon-carbon single bond. So at room temperature, one conformation will be interconvertible to the another conformation because they have very small energy difference. And the most or the more stable conformations will be with which is having the bulky groups far apart, which are having bulky group at maximum distance. Okay, so if you want to isolate different conformations of ethane, propane or butane, we need to sufficiently freeze, or we need to sufficiently reduce the temperature. If we reduce the temperature, we will be able to separate the different conformations of ethane, propane and butane. Clear to everyone? So you Yes, have sir. seen energy difference, the most stable form and the least stable form. There will be energy difference into these two forms, which is known as Torsional torsional strain. strain. Torsional strain. Okay. And today we will be discussing about the conformation of the cycloalkanes. Cycloalkanes may be a cyclopropane. So if you see the structure of the cyclopropane, if you assume it as a planar ring, it may be a it may be considered as a planar ring. If you see this ring, assuming that three corners represent its three carbons and there are two hydrogens attached with the each carbon. So this angle between the two carbons is 60 degree. If we assume that the cyclopropane ring is a planar ring, and if we draw its conformations in as a Newman representation, then we know that the front carbon is represented by a dot and the back carbon by the back carbon by circle. So if you see this planar ring, then this cyclopropane will be in eclipsed form. Eclipsed form में कैसे होगा? Here it is CH2, it is CH2. So now you can see the two carbons, two CH2, and the third CH2 will be here, CH2. So this is the eclipsed form. Since this ring is in eclipsed form, so it will experience sufficient amount of the torsional strain. कैसी स्ट्रेन होगी इसमें? टॉर्शनल स्ट्रेन होगी. Torsional. ठीक है. One more important thing, if you assume that it is a planar ring, then according to the bare ring strain theory, if there is a deviation from the normal bond angle, कार्बन का normal bond angle कितना होता है? 109.5 degree. 109.5. Okay, so if there is a ring strain, if there is a deviation from the normal bond angle 109.5 degree, then it will experience ring strain according to the Bayer's strain theory.
And we know that the bond angle in the cyclopropane is 60 degree. So it will have the ring strain. Ring strain is equals to the deviation from the normal bond angle. 49.5 degree. 49.5 degree. degree divided by 2 कितना हो गया? 24.7. 24.7 7.5. 5 24.5 ठीक है 7.5 sir. Sir, 7.5 7.5. Yes, sir, 24.75. 24.75 ठीक है कोई बात नहीं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है सो दिस इज द ring strain which is present in the cyclopropane. So both the factors, this torsional strain which is because of its eclipsed form and the ring strain because of the deviation from the normal bond angle make it this ring unstable, and that is the reason these rings are highly reactive, ठीक है, and less stable because they experience the torsional strain as well as the ring strain. And then if you see the overlapping between the, आपको पता है नॉर्मल sp3 बॉन्ड के थ्रू हमारी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, आपको पता है ये कैसा होते हैं ओवरलैपिंग? तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्री. So we know that sigma bond between the two carbon single bonds are a result of the sp3 overlapping as in case of the normal alkanes. Okay, but like normal alkanes this bonding will not be as effective because this angle of 60 degree, okay, so they are not on the same axis, so the bond will be slightly in the bent form or in the banana form. बॉन्ड कैसा बनता है हमारा? ये बनाना बॉन्ड टाइप का बनता है इस तरह से, ठीक है. एज ए रिजल्ट दिस इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है. इफ यू कंपेयर दैट विद द नॉर्मल एल्केन में क्या होता है 109 डिग्री का एंगल होता है एंड ऑन द सेम एक्सिस दे फॉर्म द sp3 ओवरलैपिंग which is very effective overlap, but here it is because of the band structure it will not be as effective as in case of the alkane. So these rings are slightly unstable, so and will react faster compared to our normal alkanes. Now if you see the cyclobutane, तो साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन if you assume it as a planar ring, so there will be angle of 90 degree.
And this, if it is a planar ring, then this will also be in the so this is eclipsed form. और अगर इसका स्टैगर्ड फॉर्म अगर हम बना सकें तो नहीं, ठीक है, इक्लिप्स्ड में ही होगा ये. इट विल बी इन द इक्लिप्स्ड फॉर्म, so it will feel the torsional strain. Because it is in the eclipsed form and we are assuming that it is a planar ring, it will experience the torsional strain, as well as this will also experience the ring strain. Because if you see the deviation from the normal bond angle, it will have the value क्या होगी इसकी 9.75. कैलकुलेट करके बताओ. Yes, sir. 9.75. 9.75. और पहले हमारी कितनी आ रही थी फॉर 3 मेंबर रिंग? 24.75. 24.7. So as compared to 3-member ring, these 4-member rings are relatively more stable because they feel lesser ring strain according to the Beer strain theory, and they will also experience the torsional strain. So these rings are also reactive and less stable. ठीक है. Similarly, if we move, so if you see this structure, this will have the slightly bent structure to relieve this angle strain. This may be found in this type of the bent structure, this type of the angular structure which is not planar. ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में होती है, so that it can relieve the angle strain. Now see the cyclopentane. सर वीडियो ऑफ होगी. हाँ करते हैं ऑन अभी. तो साइक्लोपेंटेन जो हमारा होता है बेसिकली, साइक्लोपेंटेन ये होता है, ठीक है, एंगल होता है इसमें 108 डिग्री. कितना एंगल है? 108 डिग्री. तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, प्लेनर मान के चलेंगे, इट विल फील द टॉर्शनल स्ट्रेन जैसा भी कर रहे थे हम. ठीक है, एंड दिस विल आल्सो हैव द रिंग स्ट्रेन, बट रिंग स्ट्रेन इसमें बहुत कम होता है. कितना होगा रिंग स्ट्रेन? वह कितना हुआ रिंग स्ट्रेन? 0.75. So it is free from the ring strain. ठीक है, and it may also be found in this type of structure. Another possibility for that cyclopropane is this type of structure, boat like structure.
but here it will feel the repulsive interaction between these two flagpole hydrogens. ठीक है, तो ये हमारा साइक्लो पेंटेन है. And now the more important or the most important is the conformation of the cyclohexane. ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन के देखेंगे हम मेनली. तो सर ये रिंग स्ट्रेन की कंडीशन क्या है, होने नहीं रिंग होने की? रिंग स्ट्रेन का जो हमारा ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है ना, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, कार्बन के लिए क्या होता है 109 डिग्री. टेट्राहेड्रल sir. ज्योमेट्री हम मान के चलते हैं. तो Yes, अकॉर्डिंग sir. टू द बियर स्ट्रेन थ्योरी, if there is a deviation from this normal bond angle, it may be negative or may be positive, it will create ring strain. ठीक है, तो ये उनका एजम्पशन था. ऑल्दो इट इज नॉट 100% ट्रू. जब आप एक्सपेरिमेंटल डाटा से अगर आप कोरिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा है नहीं. ठीक है, बट जैसे स्मॉल रिंग्स हैं उनमें ये आपको काफी हद तक ये एक्सप्लेन कर पा रहा है. जैसे हमने 3 मेंबर रिंग में देखा कि हमारा रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ रहा था, बिकॉज इट वॉज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल बॉन्ड एंगल एंड द एक्चुअल जो हमें प्लेनर जो ज्योमेट्री मान करके एज्यूम्ड जो हमारा बॉन्ड एंगल था उसमें. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 109 और ये 108 डिग्री का एंगल होता है जब अगर हम प्लेनर मान के चले. सो देयर इज ओनली 0.75% विच इज नेग्लिजिबल. ठीक है, वैल्यू ऑफ द रिंग स्ट्रेन. सो दिस रिंग इज फ्री फ्रॉम द रिंग स्ट्रेन. बट बिकॉज Okay, प्लेनर sir. रिंग, इट इज ए प्लेनर रिंग, सो इट विल बी फाउंड इन द इक्लिप्स्ड फॉर्म. जो भी प्लेनर रिंग्स है वो किस में होती है, इक्लिप्स्ड फॉर्म में होती है. तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या अच्छा होगा, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन होगी. इक्लिप्स में आपको पता है कि जो हमारे जो ग्रुप्स होते हैं या एटम्स होते हैं, दे कवर ईच अदर. ठीक है, एंड दे विल शो द रिपल्सन बिटवीन ईच अदर. ठीक है, तो अब हम देखते हैं 6 मेंबर रिंग. साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लोहेक्सेन के लिए जो हमारे पास कंफर्मेशंस पॉसिबल है, मैं वो सारे आपको बता देता हूं एक बारी. ये हमारा चेयर कंफर्मेशन है. Then we will discuss which one will be most stable. ये चेयर कंफर्मेशन हो गया. दूसरा हमारा होता है बोट कंफर्मेशन. बोट कंफर्मेशन ऐसे नहीं बनाएंगे इसको. बोट कंफर्मेशन विल बी like that. So this is the boat conformation. ठीक है, एक हमारे लिए इसके लिए पॉसिबल है ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन. पहले वाले का क्या नाम था सर? ये चेयर कंफर्मेशन है, चेयर. ये बोट हो गया, ये ट्विस्ट बोट. ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा स्टेबल सबसे ज्यादा है. एक हमारा पॉसिबल है इसके लिए हाफ चेयर. ये 4 कंफर्मेशंस हमारे पॉसिबल है फॉर द साइक्लोहेक्सेन. ऑल्दो दे हैव नॉट बीन सेपरेटेड येट. सेपरेट नहीं हुआ है अभी तक, ये है ना.
but we are assuming these 4 conformations of the cyclohexane. अब 1 by 1 देखते हैं. सबसे पहले चेयर कन्फर्मेशन को डिस्कस करते हैं. Then we will find out which will be the most stable and which structure will be the least stable. ये लिख लिया आपने? साफ कर दूं मैं? Yes, sir. ठीक. एक तो बात, you can see here this chair conformation is not a planar structure. क्या नहीं है? एक तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, प्लेनर नहीं है तो इसका मतलब ये फ्री फ्रॉम रिंग स्ट्रेन. रिंग स्ट्रेन अगर हम मान के भी चलें, अगर हम रिंग स्ट्रेन कैलकुलेट भी करके देखें तो हमें पता चलेगा रिंग स्ट्रेन कितनी होनी चाहिए. क्या होगी इसकी? 109.5 माइनस 110 जो इसका एंगल होता है ऑलमोस्ट 111 डिग्री होता है. तो कितना आया रिंग स्ट्रेन हमारा? माइनस 0.75. ये ज्यादा आएगा? बताओ कितना होगा? .75 हो गया ना माइनस. ऑलमोस्ट इट इज फ्री फ्रॉम द रिंग स्ट्रेन. और वैसे भी जो हमने स्ट्रक्चर, जो चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ किया, इट इज नॉट ए प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज फाउंड इन स्टैगर्ड फॉर्म. स्टैगर्ड फॉर्म में होता है ये. इट इज नॉट फाउंड इन इक्लिप्स फॉर्म. इफ यू कंसिडर दिस चेयर फॉर्म, दिस इज इन द स्टैगर्ड फॉर्म. और स्टैगर्ड फॉर्म में कैसे होता है ये अब आप देख लीजिए. हाँ बोलिए बोलिए. बोलो क्या बोलना चाह रहे थे? सर मैं पूछ रहा था ये रिंग स्ट्रेन फ्री जो ये फ्री फॉर्म में है तो सर टॉर्जनल स्ट्रेन भी फ्री फॉर्म में होगा? टॉर्शनल स्ट्रेन जो है हमारा डिपेंड करता है कि वो इक्लिप्स फॉर्म में है या स्टैगर्ड फॉर्म में. जब स्टैगर्ड फॉर्म में है, ये मैंने आपको बताया कि जो चेयर कन्फर्मेशन इट इज फाउंड इन स्टैगर्ड फॉर्म. और स्टैगर्ड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? फ्री फ्रॉम द टॉर्शनल स्ट्रेन. इक्लिप्स्ड फॉर्म में होगी तो टॉर्शनल स्ट्रेन होगी उसमें. इट विल एक्सपीरियंस टॉर्शनल स्ट्रेन. अब आप देखो कैसे है ये स्टैगर्ड फॉर्म. ये आपको पता चल गया. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4 रिंग. ये 5th हो गया, ये 6th हो गया. सो वी हैव रिटन हियर 6 कार्बन्स. 6 कार्बन्स आपको दिख रहे हैं. 2 तो ये हो गए, एक तो रिंग हो गया, एक डॉट हो गया. एंड सेम हियर ring and dot and 2 carbons are there. And you can see this Newman projection. This is the staggered form. Okay. None of the bulky group or none of the hydrogens are eclipsing each other. They are having maximum distance. Am I right? Yes, sir. तो इसका मतलब ये कैसा फॉर्म हुआ इसका? Staggered form. So this chair form is in the staggered form. So it is free from the टॉर्जनल स्ट्रेन. torsional strain. So there is no angle strain or ring strain and there is no torsional strain which make it unstable. So this ring will be stable enough. तो ये रिंग हमारी कैसी हुई? स्टेबल, बिकॉज देर आर नो फैक्टर विच मेक इट अनस्टेबल. ठीक है, समझ में आ गई बात? सर ठीक है, आप देखते हैं बोट कन्फर्मेशन में क्या प्रॉब्लम है फिर.
ये बोट कंफर्मेशन है। तो रिंग स्ट्रेन तो इसमें है नहीं, या तो पता ही है आपको, इट इज फ्री फ्रॉम द रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्या लिखेंगे हम? फ्री फ्रॉम रिंग स्ट्रेन। अब ये देखते हैं फॉर्म कौन सी है इसकी। इट इज इक्लिप्स फॉर्म। किस फॉर्म में है ये? इक्लिप्स फॉर्म में है। कैसे है इक्लिप्स फॉर्म में? अब देखते हैं जरा इसको। It is in eclipse form, so you can draw like that. H, 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 H. CH2 and CH2. H and H. So now you can see here there are 6 carbons. 2 कार्बन आपके ये हो गए न्यूमैन प्रोजेक्शन में, 2 ये हो गए, और 2 कार्बन हमारे CH2 CH2 यहां पे हो गए. So you can see here each hydrogen is covering the another hydrogen, and here this CH2 group is covering the another CH2. So you can say this is the eclipsed form. और eclipsed form में इसका मतलब ये क्या हुआ? It will have torsional strain. टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें होगी. इसका मतलब चेयर फॉर्म के कंपेयर में ये अनस्टेबल होगी, क्योंकि चेयर फॉर्म में हमारे में टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं थी. इट वाज फ्री फ्रॉम द टॉर्शनल स्ट्रेन, बट हियर इट इज हैविंग ए टॉर्शनल स्ट्रेन बिकॉज इट इज फाउंड इन इक्लिप्स्ड फॉर्म. हाँ, अभी नहीं साफ करूं. इन एडिशन टू दीज 2 स्ट्रेन, ये 2 स्ट्रेन तो हमें पता चल गई. ठीक है, रिंग स्ट्रेन इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, but it has sufficient amount of the torsional strain, and in addition to that it also have this interaction between the 2 flagpole hydrogens. These 2 flagpole hydrogens will experience the van der Waals interaction. Van der Waals interaction or flagpole interaction. So this molecule will experience a van der Waals repulsion between the 2 hydrogens, or this will experience a flagpole interaction between these 2 hydrogens, which make it a unstable ring, which will destabilize that. तो यहां पे एक हमारी फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी है. हाँ अमन, समझ में आया? अमन, ठीक है, समझ में आ गया ये बोट कंफर्मेशन? यस सर. ठीक है. नाउ सी द ट्विस्ट बोट. ट्विस्ट बोट में क्या किया हमने? बोट को ट्विस्ट कर दिया है. ठीक है. सो देर इज नो कार्बन एट दिस क्रॉसिंग पॉइंट. इट इज जस्ट ए ट्विस्टिंग ऑफ द रिंग. अब ट्विस्ट करने का क्या फायदा हुआ?
एक तो हमारा रिंग स्ट्रेन तो कम हो गया, रिंग स्ट्रेन तो था भी नहीं पहले भी, और अब अगर होगा भी तो थोड़ा और कम हो गया है। टॉर्शनल स्ट्रेन भी रिड्यूस हो गई, क्योंकि जो अभी हमारा कंप्लीट इक्लिप्स फॉर्म में था अब वो कंप्लीट इक्लिप्स फॉर्म में नहीं रहेगा, तो कुछ हद तक हमारी टॉर्शनल स्ट्रेन भी रिड्यूस हो गई। और जो फ्लैगपोल इंटरेक्शन थी यहाँ, जो हाइड्रोजन के बीच में फ्लैगपोल इंटरेक्शन थी, वो भी नहीं होगी, नो फ्लैगपोल इंटरेक्शन, फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बोट फॉर्म हमने अभी डिस्कस किया था उसके कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बोट फॉर्म में हमारा फ्लैगपोल इंटरेक्शन थी, टॉर्शनल स्ट्रेन थी, लेकिन यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन भी रिड्यूस हो गई है और फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी कम हो गए। नाउ दीज हाइड्रोजन विल बी सम at some angle, so they will not directly interact with each other. And another conformation which I told you, for that it is half chair form. हाफ चेयर में क्या दिक्कत है, so this portion of the ring आपको दिख रहा है ना, ये कैसा है, प्लेनर। जो हमने हाफ चेयर फॉर्म बनाया है, this half portion is not planar, but the remaining half is the planar portion. And you know, planar rings experience the ring strain, so there will be a large degree of ring strain. This will experience ring strain, and other three conformations of cyclohexanes were not experiencing the ring strain, but this will experience ring strain, and this is the dominating factor in this case, and this ring strain make it least stable. भले ही बाकी इंटरेक्शंस इसकी कम हो, but because of this flat portion of the ring, it will experience a high degree of the ring strain. ठीक है, and which will make it least stable form. तो अगर हम इनको एनर्जी या स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें, तो हमारे सबसे स्टेबल कौन सा फॉर्म आया, मोर स्टेबल सर चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन। इसके बाद सर फिर सर लीस्ट स्टेबल होगा सर हाफ चेयर कन्फर्मेशन। हाफ चेयर लीस्ट स्टेबल होगा। अच्छा, इन बिटवीन बताओ, बीच में बताओ, चेयर के बाद कौन सा होना चाहिए, बोट होना चाहिए या ट्विस्ट बोट होना चाहिए, सर ट्विस्ट बोट। Twisted. ट्विस्ट ट्विस्ट बोट, क्योंकि ट्विस्ट बोट में हमारी फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं होती और जो एंगल स्ट्रेन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। हाँ, टॉर्शनल स्ट्रेन भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ट्विस्ट बोट, तो और यहाँ पे होगा बोट, एंड लीस्ट स्टेबल हमारा हो गया हाफ चेयर। तो ये हमारा ऑर्डर होगा इसका। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल अगर हम डायग्राम बनाएं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस अगर इसका करके हम देखें, तो जो हमारा ग्राफ आएगा बिटवीन द ये एनर्जी हो गई
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन, या फिर रोटेशन भी आप लिख सकते हैं. सो हियर वी विल राइट रोटेशन. तो किस तरह का आएगा हमारा, मान लो ये हमारा एनर्जी लेवल है चेयर कंफर्मेशन के लिए. तो जैसा हमारा भी आ रहा था, जैसा हमारा ब्यूटेन के कंफर्मेशन में हो रहा था, सेम उसी तरह का एनर्जी डायग्राम इसका बनेगा हमारा. कंफर्मेशनल एनालिसिस में हम देखेंगे, यहाँ पे चेयर फॉर्म आ गई हमारी. ठीक है, यहाँ भी चेयर फॉर्म आ जाएगी. और लीस्ट स्टेबल हमारी कौन सी थी, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर, हाफ चेयर. हाफ चेयर. ये हाफ चेयर आ गया. इसके बाद हमारी थी बोट फॉर्म, क्योंकि इसमें फ्लैग पोल इंटरेक्शन थी. ये हमारी आ गई बोट फॉर्म. और यहाँ पे हमारी आ जाएगी ट्विस्ट बोट. ये ट्विस्ट बोट आ गई. ठीक है, एनर्जी डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो ये बोट फॉर्म है और जो चेयर फॉर्म है, इसका जो एनर्जी डिफरेंस है दिस दैट इज 11 किलो कैलोरी पर मोल. यहां डाल देते हैं एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है, अब यहां आप खाली 11 लिख लीजिए, 11.0. नहीं, ये वाला डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है हमारा. ठीक है, दिस डिफरेंस इज 11.0. और जो हमारा बोट और चेयर फॉर्म के बीच में डिफरेंस है, दैट इज 7.1. 7.1. और अगर आप ये डिफरेंस देखोगे यहां से, ये जो डिफरेंस है दैट इज 5.5. ये क्या है 7.1? 7.1. 7.1 है जो चेयर और जो बोट फॉर्म के बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो. और चेयर फॉर्म और ट्विस्ट बोट में कम डिफरेंस होगा, बिकॉज दे आर रिलेटिवली स्टेबल कंपेयर टू बोट फॉर्म. तो ये 5.5 है. और जो चेयर फॉर्म और जो हाफ चेयर फॉर्म का वो डिफरेंस मैक्सिमम होगा, बिकॉज दे आर द, दिस इज द लीस्ट स्टेबल फॉर्म एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन. अब कुछ साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके काम आएंगी आगे तक. ये बना लो पहले, सो दैट आई कैन इरेज इट.
अब हम देखेंगे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स इन साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में जो हम लोग मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन पढ़ रहे हैं वो है हमारा चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म है। अब इसमें देखते हैं कि हमारी एक्सियल हाइड्रोजन्स कौन सी होती है। देखो आप एक चीज समझ लेना, पहली बात तो ये जो कार्बन्स हैं, ठीक है, in the cyclohexane there are 6 carbons, so this carbon is above the plane। कहाँ होता है? अप साइड में होता है कार्बन, और जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो कहाँ होगा? डाउन साइड में, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जो वर्टिसेस जो बनेगी, अगर आप देखोगे इसकी स्ट्रक्चर, तो वर्टिसेस के जो टॉप पर होगा वो ये वाला कार्बन होगा, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? डाउन होगा। अगेन जो नेक्स्ट होगा ये क्या होगा? अप होगा, फिर ये डाउन होगा, फिर ये अप होगा, और ये डाउन होगा। तो these are the relative positions of the carbons present in the cyclohexane, chair form of the cyclohexane। Is that clear to everyone? कार्बन बताया मैंने, अभी हाइड्रोजन्स की पोजीशंस नहीं बताई है। ठीक है, सिंस दिस रिंग इज नॉट ए प्लेनर रिंग, तो जो ये हमारा कार्बन है ये वर्टिसेस, सॉरी नीचे क्या लिखा है? नीचे डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ऑल्टरनेट होते हैं। पहले हमें कार्बन की पोजीशन समझनी चाहिए कि जब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि जो ये वर्टिसेस बनेंगे उसके जो टॉप पर है ये कार्बन होगा, तो नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो डाउन साइड में होगा, फिर से एक वर्टिस बनेगी और उस पे जो कार्बन होगा वो अप साइड में होगा, दूसरा वाला कार्बन डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। इस तरह से ऑल्टरनेटिवली इनकी पोजीशंस होती हैं कार्बन की इन साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि कार्बन की पोजीशन क्या है साइक्लोहेक्सेन रिंग में। उसी के रिलेटिव हम अब देखेंगे बाकी जो इसके साथ में और एटम्स जो हाइड्रोजन अटैच हैं उनकी पोजीशन क्या है। ये समझ में आ गया कार्बन का? लिख लो। अब नेक्स्ट बनाना, दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना, इसी में मत लिखना। ये मैंने कार्बन की पोजीशंस बताई हैं आपको, नोट कर रहे ना पोजीशन ऑफ द कार्बन। नाउ सी द एक्सियल हाइड्रोजन्स। एक्सियल हाइड्रोजन्स क्या होती हैं? ये हमारी होती है एक्सियल। एरो मत बनाओ इसको, कोई बात नहीं। दे आर एट राइट एंगल ऑफ द, जो ये हमारा, अगर हम इसको प्लेन में मान के चलें, सो इट विल बी एट द अबाउ द प्लेन एट राइट एंगल, दैट मीन्स एट परपेंडिकुलर पोजीशन 90 डिग्री पर होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा ये यहां पर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इधर वाला, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा हाइड्रोजन। यहां पे एक जो हाइड्रोजन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इधर जो हाइड्रोजन होगा वो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो ये मैंने हाइड्रोजन अटैच किए हैं ये क्या है? सारे एक्सियल हैं। कैसा हाइड्रोजन सही है? एक्सियल, एक्सियल हाइड्रोजन्स। ये कैसा है हाइड्रोजन्स है? एक्सियल हाइड्रोजन्स है। और पोजीशन क्या है इनकी? देखो मैंने बताया था आपको, ये अप होगा, ये डाउन होगा। नेक्स्ट नंबरिंग अगर हम कर दें कार्बन की 1 2 3 4 5 एंड 6,
तो जो 1 नंबर पर अटैच हाइड्रोजन है ये कहां पर है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो नंबर 2 पर हाइड्रोजन है वो कहां पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर नंबर 3 पर जो हाइड्रोजन है वो कहां होगा, अप, और नंबर 4 पर जो हाइड्रोजन है वो कहां होगा, डाउन। नंबर 5 पर जो हाइड्रोजन है वो अप होगा, और नंबर 7 पर जो हाइड्रोजन, नंबर 6 पर जो हाइड्रोजन है वो डाउन होगा, डाउन। तो ये इनकी रिलेटिव पोजीशंस है। और जो ये हाइड्रोजन जो मैंने बनाए हैं जिस तरह से, ये सारे कैसे हैं, एक्सियल हाइड्रोजन्स है, एक्सियल हाइड्रोजन्स। कैसे समझ सकते हैं हम, जो हमारे इस एरो की तरफ पॉइंटेड है हाइड्रोजन्स, ये एरो मैंने बना दिया, जो इन एरोज की तरफ पॉइंटेड है वो सारे हाइड्रोजन्स कैसे हैं, एक्सियल। नहीं, गलत बना दिया है मैंने, ठीक है, इसको रहने दो, ये ऐसे नहीं होगा। ये सारे क्या है, ये एक्सियल हाइड्रोजन्स है, बस आप ये समझ लो इक्वेटोरियल के लिए होगा वो। तो ये हमने हाइड्रोजन पर हमें पता चल गया कि जो ये हाइड्रोजन है एक्सियल पोजीशन पर, पहला वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा वाला भी परपेंडिकुलर है बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड वाला भी परपेंडिकुलर है बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अल्टरनेट चलना है जो भी कुछ है, जैसे कार्बन अल्टरनेट थी पोजीशन, ऐसे इन हाइड्रोजन की पोजीशन भी क्या होगी, अल्टरनेट होगी। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कि जो 1 और 3 पोजीशन है, 1 एंड 3, 1 एंड 3 जहां हाइड्रोजन अटैच है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों अपवर्ड अपवर्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपको पता चलेगा 1 और जो 5 पर जो हाइड्रोजन है, क्योंकि आप जब नंबरिंग करोगे इधर से कर दिया तो ये 5 हो गया, अगर वापस से इधर से करते नंबरिंग तो हमारा ये 3 होता, तो ये भी कहां पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब अगर यहां पर दोनों होंगे, ये कोई अगर ग्रुप अटैच होंगे तो दे विल एक्सपीरियंस रिपल्सन बिकॉज दे आर इन द सेम साइड। तो ये बात होगी एक्सियल हाइड्रोजन्स की। आप देखते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स कौन से होते हैं, ये हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं आपको, मैंने साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ जो अटैच किए हैं। ठीक है, दे आर नॉट इन परपेंडिकुलर पोजीशन। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट प्लेनर, आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट प्लेनर है, बट प्लेनर भी नहीं है ये, दे आर ऑल्सो हैविंग सम एंगल। ठीक है, बट जो रिपल्सन होगा ना हमारा, जो ये 1 और 3 जो हम अभी देख रहे थे, तो 1 एंड 3 में जो हमारा रिपल्सन हो रहा था, देयर विल बी नो 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन। जो एक्सियल में हो रही थी वो नहीं होगी, अब डाई इक्वेटोरियल इंट्रैक्शंस नहीं होती, बिकॉज दे आर हैविंग सर्टेन एंगल, दे आर नॉट ऑन द सेम साइड। बट यहां पे भी पोजीशन हमारी कैसे होगी, आप देखो इस कार्बन पे जो हमारा एक्सियल हाइड्रोजन जो था वो कहां था, अपवर्ड डायरेक्शन में अटैच था, तो यहां पे जो इक्वेटोरियल अटैच होगा वो कहां होगा, डाउनवर्ड होगा। ये कैसा हुआ, डाउनवर्ड, क्योंकि एक कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा। अब आपको एक का पता चल गया तो रिलेटिवली बाकी का भी आपको पोजीशन पता चल जाएगी। ये कैसा होगा फिर, अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सारे जो मैंने मार्क किए हैं हाइड्रोजन, दीज आर इक्वेटोरियल। हाइड्रोजन्स, तो आप इनको कह सकते हो कि आप जो इस एरो के ऊपर आ रहे हैं, जैसे मैं अभी बना रहा था, जो जो इस एरो पे आ रहे हैं वो सारे कैसे हैं, हमारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं।
तो जो इस एरो को पॉइंटेड होंगे टुवर्ड दीज एरोज दे विल बी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ, एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स सर का इक्वेटोरियल का कंसेप्ट और बता दो। कंसेप्ट। हाँ बोलो, और बोलो। ये पता कैसे चलेगा ऊपर अपर डाउन में? ये हमें खुद को एज्यूम करना पड़ेगा बच्चे। ये देखो मैंने आपको बता दिया ना, जो आपका ये कार्बन था अपवर्ड डायरेक्शन में था, फिर जो हमारा अल्टरनेट चलता जाएगा। आप अगर आपने कार्बन को बताया तो नेक्स्ट कार्बन डाउन होगा, उससे अगला वाला अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। फिर इनके साथ में जो ग्रुप अटैच है, एक कार्बन की 2 वैलेंसीज तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने में निकल गई। बाकी जो 2 बचे उसके साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है। पहला हाइड्रोजन जो मैंने बता दिया वो एक्सियल हो गया आपका। ये एक्सियल हाइड्रोजन हैं जो मैंने इस तरह से मार्क किए हुए हैं, ये सारे एक्सियल हाइड्रोजन हैं जो कि 90 डिग्री एंगल पर हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हैं जो। तो परपेंडिकुलर है, इनमें से जो ये अप हो गया, जब हमने पहले वाले को अप मान लिया तो ये फिर नीचे वाला डाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर अप हो गया थर्ड नंबर पे, फिर डाउन हो गया, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गया। क्लियर? क्योंकि ये तो सिमेट्रिक रिंग है, कोई जरूरी नहीं है मैं नंबरिंग यहां से करूं स्टार्ट, आप यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो आपको अपना अपने हिसाब से देखना ओरिएंटेशन, बट जो भी होगा वो क्या होगा, रिलेटिव होगा। अगर आपने एक को अप माना है तो दूसरा डाउन होगा। अभी मैं इस रिंग को फ्लिप कर दूंगा तो जो अप वाले हैं वो डाउन हो जाएंगे, डाउन वाले अप हो जाएंगे। रिंग इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। अब इसके साथ जो दूसरी वैलेंसी बच गई, जो यहाँ वाली जो एक कार्बन की वैलेंसी है वो मैंने यहाँ अलग से दिखाई हुई है आपको, ये सारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। अब जब आपका जो एक्सियल जो आपका हाइड्रोजन अटैच था वो अप था, तो जो इक्वेटोरियल होगा वो कैसा हो जाएगा फिर, डाउन। जब आपको एक इक्वेटोरियल का पता चल गया तो बाकी इक्वेटोरियल्स का आप निकाल सकते हो। तो ये नेक्स्ट इक्वेटोरियल कैसा हो गया, अप हो गया। ये इक्वेटोरियल डाउन हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये अप हो गया। 6 कार्बन हैं, 6 के 6 हमने देख लिया। ये आपको पता ही है, एक्सियल मैंने बता दिया, तो जो बाकी जो बचेंगे वो हमारे इक्वेटोरियल हो जाएंगे, ये इक्वेटोरियल। तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक्सियल कौन सा और इक्वेटोरियल कौन सा है। जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आराम से बता पा रहे हैं कि एक्सियल हाइड्रोजन ये हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ये हैं, तो फिर हम उनकी रिलेटिव पोजीशन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भूल भी जाएं कि कहाँ इक्वेटोरियल होगा कहाँ एक्सियल होगा, तो आप ये एरोज ध्यान रखना बस। जो इस एरोज पे आएंगे वो सारे इक्वेटोरियल्स हैं, रिमेनिंग विल बी एक्सियल। देखो ये हमारा इस एरो पे आ रहा है, एरो का पॉइंट किधर है, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, और ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, यही हमने एरो बनाए हैं। ठीक है, तो जो हमारे इन एरोज पे पड़ रहे हैं वो सारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो हमारे एक्सियल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको या कोई डाउट अभी भी? ठीक ठीक है, अब मैं इनको एक साथ बनाता हूं, इक्वेटोरियल और एक्सियल, फिर आपको पता चलेगा और अच्छे से। अब मैंने दोनों बना दिए एक साथ। तो पहले इक्वेटोरियल ड्रॉ कर लेते हैं जो इन एरोज पे आ रहे हैं। एरो कौन से हमारे, एक एरो ये हो गया, एक एरो ये हो गया, दूसरा एरो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा हमारा एरो ये हो गया, और पांचवा एरो हो गया ये। यही है इक्वेटोरियल। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ हाइड्रोजन्स बनाए हैं वो सारे कैसे हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं। ये इक्वेटोरियल हो गया, ये भी इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, और ये भी इक्वेटोरियल है। ये 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हमने मार्क कर लिए। अब जो हमारे बाकी आएंगे वो एक्सियल आ जाएंगे। ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल, और ये एक्सियल, और ये भी एक्सियल, और एक एच बन गया यहाँ पर, ये भी एक्सियल है।
मार्क कर लिया हमने, एक्सियल इक्वेटोरियल पता चल गए। यस सर। अब अप डाउन का भी देख लो एक बारी। जो ये एक्सियल होता है ये हमारा क्या हो गया, अप। इसके साथ जो इक्वेटोरियल अटैच होगा वो कैसा हो जाएगा, डाउन। जब ये इक्वेटोरियल डाउन है तो ये वाला इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, अप। और ये एक्सियल अगर हमारा अप था तो ये वाला एक्सियल कैसा हो जाएगा, डाउन। इसी तरह से बाकी को भी आप मार्क कर लोगे। बहुत इजी है, बस सिर्फ समझना है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, आपको बताना है कि वो स्ट्रक्चर सिस फॉर्म में है या ट्रांसफॉर्म में है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, मैंने इसमें 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब जो अभी तक आपको नॉलेज मैंने दी है उसके बेसिस पे आप मुझे ये बताओ कि ये सिस कन्फर्मेशन है या ट्रांस कन्फर्मेशन है। दोनों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आर दे इन सिस कॉन्फ़िगरेशन और इन सिस कन्फर्मेशन, बताओ। चलो सर 5 मिनट का रेस्ट करो। हाँ फ्रेंड ट्रांस बोलो। हाँ हाँ, सर ट्रांस कंफर्मेशन है। ट्रांस में है। ट्रांस में है। क्यों, क्योंकि हमारा ये भी एक्सियल है और ये भी क्या है, एक्सियल है। दोनों एक्सियल है। और इस एक्सियल की 1 2 3 4, तो हमारा 1 वाला क्या था, अप है। अप। और सर ये 2 वाला डाउन है। डाउन हो गया, 3 वाला अप हो गया, और 4 वाला क्या हो जाएगा वापस से, डाउन। डाउन। ये हो गया डाउन। ये अप है ये डाउन है, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, ट्रांस। ठीक है। अब अगर आप देखोगे एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको। ये रिलेशन क्या है इनके बीच में, ये जो हाइड्रोजन है तीनों ऊपर है, आप है। तीनों क्या है, ऊपर है। तो ये सर आप पोजीशन क्या सिक्स होगी, 1 फॉर्म। 2 3, और ये क्या होगी, 1 2 3। सिस फॉर्म में है ये दोनों तीनों। ठीक है। यस और सर। मैंने बताया था परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये आपस में क्या करेंगे, 1 3 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन से ये क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगी। सो देयर विल बी 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। क्या होगी, 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, इसके और इसके बीच में और इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, इनके बीच में भी 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है। रिलेशन तो 1 3 है ना, सो इट विल मेक इट अनस्टेबल कन्फर्मेशन। तो ये क्या करता है, फ्लिप कर जाता है। फ्लिप भी करता है हमारा, जो हमारा चेयर कन्फर्मेशन, अगर मान लो हमारे पास ये कोई बल्कि ग्रुप होते, CH3 होते सपोज करो, तो ये दोनों CH3 क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करते हैं बल्कि ग्रुप, क्योंकि हमारे दोनों एक सेम साइड में है। सो दे विल शिफ्ट टू द इक्वेटोरियल पोजीशन बाय फ्लिपिंग। फ्लिपिंग में क्या होता है कि जो रिंग होती है वो हमारी फ्लिप कर जाती है, रिंग विल गेट सर तो फ्लिप। नीचे कर दीजिए। हाँ नीचे करना पड़ेगा, सही कह रहे हो।
तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमारे मान लो ये दोनों बल्कि ग्रुप 1,3 पोजीशन पर है, ठीक है, तो दे विल शो द 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन मेकिंग द रिंग अनस्टेबल। हाइड्रोजन में तो इतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप शिफ्ट भी कर दोगे तो वो आपका दूसरा वाला हो जाएगा सेम, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्री के साइक्लोहेक्सेन। बट इफ वी आर हैविंग दीज टू मिथाइल ग्रुप्स, टू बल्कि ग्रुप्स, then whether they will occupy this axial positions or the equatorial, ठीक है, it will be a matter of concern। तो आप देखेंगे कि 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन विच इज मेकिंग इट अनस्टेबल, तो क्या होगा, रिंग गेट फ्लिप्ड, रिंग फ्लिप हो जाती है इनटू अनदर चेयर कन्फर्मेशन। रहेगा चेयर ही, लेकिन क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है थोड़ा। कैसे होगा, ऊपर बना देता हूं मैं। अगर हम इस रिंग को पुश कर दें या इधर पुश करेंगे तो क्या होगा, ये C1 जो हमारा C2 की पोजीशन पे आ जाएगा। जो C1 था वो कहां पे आ गया, अब हमारा यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6 शिफ्ट कर गया। सो वेन एवर वी आर डूइंग दिस फ्लिपिंग, लिख लेना आप ये फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग में क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड्स और ग्रुप will become equatorial and vice versa। और जो इक्वेटोरियल होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप फ्लिप करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जो 1 को हमने फ्लिप करके जो है 1 हमारा यहां पे आ गया, ठीक है, तो जो 1 के साथ में हमारा जो ग्रुप अटैच था एक्सियल था, तो अब कहां हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। कहां पे आ गया, इक्वेटोरियल पर। और जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच था इक्वेटोरियल पे, वो कहां चला गया, एक्सियल पर। इसी तरह से जो हमारा दूसरा मिथाइल ग्रुप कहां पे था, थर्ड पोजीशन पे था, तो थर्ड पे ये था एक्सियल, तो अब कहां पे आ जाएगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एक्सियल इक्वेटोरियल तो आपको पता ही है, मैंने बताई थी इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सी होती हैं और एक्सियल पोजीशंस कौन सी होती हैं। तो अब जो हमारा जो ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन था, सो देयर विल बी नो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन and this structure will be more stable compared to the previous structure। ठीक है, तो रिंग कब फ्लिप करती है हमारी, जब हमारा मोर स्टेबल कंफर्मेशन बनता है। और अगर आपसे कोई कंपेयर करे, दोनों स्ट्रक्चर आपके पास दे दी जाए, ये पूछे कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग the bulky group on the equatorial position will be more stable compared to those which is having the axial position of the bulky group। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अगर यहाँ हाइड्रोजन भी होता तब ये मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता, और हम दूसरे में देखते इक्वेटोरियल कर देते तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होती। 1,3 डाई इक्वेटोरियल इंटरेक्शन कुछ होती नहीं है, 1,3 डाई इक्वेटोरियल इंटरेक्शंस होती नहीं है, ओनली 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल और 1,3 डाई इक्वेटोरियल इंटरेक्शंस कुछ है नहीं। इसका मतलब ये रिंग हमारी अगर इससे कंपेयर करें पहले वाली से तो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, सिस ट्रांस आपको समझ में आ गया, अब आप आराम से सिस ट्रांस बता सकते हो। अगर आपसे पूछे कोई कि कौन सी स्टेबल ज्यादा होगी रिंग, तो वो भी आप बता सकते हो by keeping in mind that bulky group should always occupy the equatorial position। ये आप नोट कर लेना, bulky group should be on the equatorial position to minimize the 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन।
जैसे मैंने अब आपसे एक सर एक्सियल पोजीशन के बाद टू मिनिमाइज 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, bulky group should always be on the equatorial position to minimize the 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। जैसे अब मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया आपको PS3, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर मैं एक ये बना दूं आपके सामने, चलो यही बना, इसी तरह से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड सर। सेकंड वाली सर। सेकंड वाली ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज द बल्कियर ग्रुप बल्कियर ग्रुप occupies the equatorial position, इक्वेटोरियल पोजीशन। means it will be more stable। ठीक है, तो यही सब हमें साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस में समझना था। ऑलमोस्ट सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है हमारा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? क्या हुआ, नहीं पता? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैवियर वाला है सर सेकंड में। सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि ड्रॉ ए कन्फर्मेशन, मोर स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो कौन इसको ड्रॉ करके बताएगा? 1 पर ब्रोमो है, 3 पर मिथाइल ग्रुप है, तो कौन सा स्टेबल कन्फर्मेशन इसका बनेगा, ये मुझे बताओ एक बारी। क्या करना है सर? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसको ट्रांस और लिख लो आप यहाँ पर, ट्रांस, ये तो कंफ्यूजिंग है। ट्रांस 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपको ड्रॉ करके बताना है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले तो हमें साइक्लोहेक्सेन बनाना है। बनाओ पहले, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन।
ये मैंने इसकी पोजीशन मार्क कर दी 1 2 3 सर हो गया। 4 5 एंड 6 हो गया। अरे वाह वेरी फास्ट। ठीक है, तो देखो 1 पोजीशन पर क्या है हमारा ब्रोमो, ठीक है, और ट्रांस पोजीशन में हमें लेके चलना है। सपोज करो हमने यहाँ पे रखा ब्रोमो को, ठीक है, और ये हो गया हमारा अप साइड में, तो ये वाला डाउन हो जाएगा। यहाँ पे एच ही है, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं। 3 पोजीशन पे आ जाओ अब। 3 पोजीशन पे जो एक्सियल होगा वो क्या होगा, डाउन। तब जाकर के हमारा ट्रांस आएगा। दोनों एक्सियल एक्सियल रखने पड़ेंगे हमें, है ना, ट्रांस करने के लिए। तो यहाँ हमारा आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। क्या आपने यही बनाया है? यस सर। ये बनाया है ना? तो क्या ये स्टेबल कन्फर्मेशन होगा या फिलिपिंग की रिक्वायरमेंट है? सर 3 पर मिथाइल है, सर 4 पर। सर 3 पे है। सर सर 3 आपने में 4 पे लगाया है मिथाइल। 4 पे लगा दिया, गलती हो गई। चलो कोई नहीं, इसको सही कर लो। 3 पे लगाओ, 3 पे लगाओ इसको। ये H हो गया। तो 3 पर जो हमारा एक्सियल होगा वो कहाँ होगा, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ठीक है। तो ये एक्सियल हमारा कौन सा आ रहा था इसमें, एक्सियल ये था, ये ना एक्सियल। यस सर। यस सर ऊपर वाला। ये सर मिथाइल ये मिथाइल डाउन है। हाँ मिथाइल डाउन जाएगा, क्योंकि हमें इसका ये एक्सियल जो हमारा आया ये तो अप हो गया। तो हमारा जो ये इक्वेटोरियल वाला होगा वो हमारा क्या होगा, डाउन। मिथाइल ग्रुप यहाँ आएगा। फिर अब ये अप एंड डाउन का रिलेशन है, इसका मतलब ये ट्रांस है। तो अब बताओ मुझे, क्या ये स्टेबल कंफर्मेशन है? ये तो हमने ठीक है ट्रांस तो बना दिया हमने, लेकिन अब मैं आपसे कहूं इसमें से मोर स्टेबल बनाना है इसका। ट्रांस तो ये है, क्या ये मोर स्टेबल होगा या दूसरा अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तब मोर स्टेबल होगा? कौन सा बल्कि ग्रुप है इनमें, बीआर या मिथाइल? मिथाइल बल। मिथाइल बल्कि होता है। सर बी आर सर। बीआर, बीआर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन से बहुत ज्यादा होता है ना। कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन्स को भी अटैच कर दोगे, उनका भी एटॉमिक नंबर फिर भी बीआर का ज्यादा होता है, एटॉमिक वेट भी ज्यादा होगा। एम आई राइट? तो जब एटॉमिक वेट ज्यादा है तो इसका मतलब बल्कि कौन हुआ, बीआर इज बल्कियर कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो बीआर हमारा बल्कि है, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंफर्मेशन इट इज ऑन द एक्सियल पोजीशन। और मैंने अभी आपको स्टेटमेंट क्या दिया था, द बल्कियर ग्रुप शुड बी ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्लिपिंग करनी पड़ेगी। तो फ्लिपिंग कर दो इसकी, या तो आप डायरेक्ट इसी में कर दो। अगर आप ये तो चलो हमारा सिंपल साइक्लोहेक्सेन का है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम जैसे ग्लूकोज का कंफर्मेशन करते हैं ना, तब हमारा जो ये ऑक्सीजन है ये शिफ्ट कर जाता है नेक्स्ट पोजीशन पे, तो वहां हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट भी इसी पोजीशन पे भी ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे के ऐसे भी फ्लिप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो अब हमारा ये 1 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें 1 और 3 की पोजीशन देखनी है बस, है ना। तो 1 में हमारा जो बी आर है वो इक्वेटोरियल चला जाएगा यहाँ पर एच, और 3 नंबर पर जो हमारा मिथाइल अभी जो था कैसा था, इक्वेटोरियल। अब कहाँ जाएगा, एक्सियल। ठीक किया है मैंने? शेखर सही किया है यस मैंने? सर। अगर जी आप सर। इसको ऐसे भी बनाओगे ना, सेम इसी कंफर्मेशन में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे बी आर दिखा दोगे, एच यहाँ कर दोगे,
और मिथाइल ग्रुप हमारा आ जाएगा फिर कहां पर, यहाँ पर, और H यहाँ पर आ जाएगा। तब भी ये ठीक है, तब भी गलत नहीं है, दोनों ही सेम है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक ही है, सारे कार्बन कार्बन है। आप कार्बन को यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लो या यहां से कर लो, देयर विल बी नो डिफरेंस। 1 2 3 4 5 and 6, so these are same, ये सेम ही है। क्या है ये, सेम है। तो ये हमारे डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, थोड़ी देर और लेंगे इस क्लास को, फिर खत्म करेंगे। और एक बार अगर सिलेबस आपने मुझे शायद व्हाट्सएप किया था ना, यस सर। मैं एक बार चेक करता हूँ कुछ और क्या रह गया है। किस नाम से किया था, मुझे ग्रुप पे किया हुआ है क्या, पर्सनली किया था सर। पर्सनली? एक बार फिर से अपने उससे नंबर से कुछ लिख के भेजो ताकि मेरे को तुरंत मिल जाए। भेज दिया सर। हाँ मिल गया, मिल गया। इथेन ब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन तो हमने ऐसे ही किए थे फॉर नॉलेज। साइक्लोहेक्सेन ही था मेनली। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज फॉर्मूला, न्यूमैन, साहॉर्स एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी, कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये सब हमने कर लिया। डायस्टेरोमेरिज्म, मीजो कंपाउंड कर लिया, थ्रियो इरिथ्रियो, डीएल हो गया, सिस ट्रांस हो गया, सीआईपी रूल हो गया, ईजेड हो गया। अच्छा, ये एक हमारा इंटर कन्वर्जन में हमने वेज डैश फॉर्मूला को फिशर में किया था, है ना। बाकी हमने ये न्यूमैन और उसमें नहीं किया, न्यूमैन और साहॉर्स में, साहॉर्स एंड इनका इंटर कन्वर्जन नहीं किया। ये और एक बार देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखते हैं, अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कोई स्ट्रक्चर लिखा हुआ हो तो उसको हम न्यूमैन में या फिर साहॉर्स में अगर कोई हमसे कन्वर्ट करने के लिए बोले तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस हमने सफिशिएंटली स्टडी कर लिए हैं। मैं बोल दूंगा। फिशर टू साहॉर्स इंटर कन्वर्जन, फिशर टू साहॉर्स इंटर कन्वर्जन। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जैसे साहॉर्स में हमारे 2 कार्बन्स होते हैं एटलीस्ट, है ना, 2 कायरल कार्बन्स होने चाहिए, तब हम कर पाएंगे। तो हम पहले फिशर का देखते हैं जिसमें 2 कायरल कार्बन्स हों। ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है विच इज हैविंग 2 कायरल कार्बन्स। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, 2D स्ट्रक्चर। इसको समझ लो हमारा कैसे होता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है जो प्लेन में होता है, और ये जो हमारे होते हैं टुवर्ड द ऑब्जर्वर होते हैं। और ये कहां होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये होता है हमारा इसका एक्चुअल जो कौन होता है हमारा यस सर। अरेंजमेंट जो है ग्रुप्स का। ठीक है, अब जो हम देखें साहर्स रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा साहर्स रिप्रेजेंटेशन होता है। सपोज करो ये हमारा कायरल कार्बन नंबर 1 था और ये 2 है, मैं 1 और 2 मार्क कर देता हूं इनको, ठीक है, 1 2 1 2। ये हमारा नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। हमें पता है कि जो ये हमारे ग्रुप्स हैं ये कहां पर है, अबाउट द प्लेन। यही मैंने आपको बताया था,
जब अगर हम इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जैसे हमने इसका बनाया है, सिमिलरली अगर हम इसका भी बना दें तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे अबाउट द प्लेन है और ये हमारा क्या है, बिलो द प्लेन। ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में ड्रॉ होता है। आपको दिख रही है ना, ये आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा OH और H ऊपर है, ऐसे अबाउट द प्लेन है, और हमारा जो C2H5 है वो बिलो द प्लेन है, ऐसे नीचे की तरफ है। इसी तरह से जब C1 पे देखोगे तो C1 पे भी OH और H अबाउट द प्लेन है और मिथाइल ग्रुप पे वो नीचे की तरफ है। तो आपको पता चलेगा मिथाइल और इथाइल एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं, ये वाला OH इस वाले OH को इक्लिप्स कर रहा है, ये इसको कर रहा है। तो हमारा जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑलवेज किस फॉर्म में लिखा जाता है, इक्लिप्स फॉर्म में। इक्लिप्स कैसी फॉर्म। फॉर्म में, ये समझ में आ गई बात, इक्लिप्स फॉर्म है, ये हमें Yes, sir. समझना है। तो जब हमारी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इक्लिप्स फॉर्म में है तो हमारा जो साहर्स रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमें किस में ड्रॉ करना पड़ेगा, इक्लिप्स फॉर्म में ही ड्रॉ Eclipse करना form. पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन। और ये हमारी इक्लिप्स फॉर्म है, ये हमारी इक्लिप्स फॉर्म है, यही होती है हमारी इक्लिप्स फॉर्म साहर्स रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें हमारे ये जी सर। ऊपर वाले ग्रुप है ये अवे फ्रॉम द अबाउट द प्लेन है, और ये जो नीचे जो हमने ब्रोकन लाइन से शो करें ये बिलो द प्लेन है। Below the plane. जब हमें पता है तो हम फटाफट से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा काम खत्म हो गया कन्वर्जन। देखो कैसे, मैंने ये नंबर 1 मार्क किया था, जो नंबर 1 नंबर 2। अब नंबर 1 जो हमारा कार्बन है, आप उस नंबर 1 के ग्रुप्स को उठा लो। नंबर 1 पे क्या है, राइट हैंड साइड में OH, ठीक है। या अगर आप यहां से करना चाह रहे हो, ये आपका है, ठीक है। अगर आप यहां से सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो मैं क्या करता हूं, इसकी नंबरिंग भी नंबर 2 कर देता हूं पहले यहाँ पे। बात एक ही है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने नंबर 2 को कर दिया और ये नंबर 1 को कर दिया यहाँ पे, ये नंबर 2 और ये नंबर 1। ये सिर्फ हमने समझने के लिए नंबरिंग की है, ठीक है। तो नंबर 2 पे आप देखो क्या है, OH राइट हैंड साइड में, और H कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, और C2H5 कहां पर है, बिलो द प्लेन। ठीक है। Yes, sir. इसके बाद नंबर 1 पर आ जाओ। नंबर 1 पर OH कहां पर है, राइट हैंड साइड, और ये H कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो मिथाइल ग्रुप है वो कहां जाएगा हमारा, बिलो द प्लेन, CH3। ये बन गया हमारा। तो इसको चाहे आप ऐसे लिख लो या उसमें लिख लो, एक ही बात है, CH3 C2H5 OH एंड H। कन्वर्ट हो गया। अब मैं कहूं नहीं, इसको तो न्यूमान फॉर्म में करना था हमें, साहर्स में नहीं करना। तो न्यूमान भी हमें पता है, न्यूमान में भी कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूमान में हमारा क्या होता है, बनेगा वही इक्लिप्स फॉर्म में ही। किस फॉर्म में बनेगा न्यूमान भी, इक्लिप्स फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो इक्लिप्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमारा न्यूमान बनाए या फिर साहर्स बनाए, दोनों को दोनों इक्लिप्स फॉर्म में ही होंगे। तो न्यूमान में अगर आप देखोगे तो ये हमारा फ्रंट कार्बन हो गया। कौन सा कार्बन आ रहा है भाई, हमने कहा ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे। तो ये नंबर 2 कार्बन हो गया, फ्रंट कार्बन। और ये जो रिंग है ये हमारी बैक साइड हो गई। तो अब आप उस हिसाब से ग्रुप्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे, इसको आप एक काम करो, क्योंकि हमें बिलो द प्लेन दिखाना है ना, मैंने उसको ऊपर दिखा दिया, तो आप इसको बिलो द प्लेन ही स्टाइल में लिखो, ऐसे लिखो, ये ठीक है ना। आप एक ये हो गया, और ये हमारे ऐसे लिख सकते हैं अब हम आराम से। तो ये हमारा नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 1। तो नंबर 2 पर बताओ OH कहां पर है, राइट हैंड साइड। नंबर 2 पे OH राइट हैंड साइड और H लेफ्ट हैंड साइड। और C2H5 कहां हो गया, बिलो द प्लेन, C2H5। इसी तरह से नंबर 1 पे देखो, मिथाइल कहां पर हो जाएगा, बिलो द प्लेन, और OH कहां पर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, और इधर ये हो गया। ये बन गया, हमने जो कन्वर्ट कर दिया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को
सॉहर्स में भी कर दिया और न्यूमान में भी कर दिया। ये साहॉर्स हो गया, ये न्यूमान हो गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं कि ये हमने जो कर दिया ये तो इक्लिप्स फॉर्म है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्लिप्स फॉर्म को इक्वेटोरियल में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इक्वेटोरियल में? सॉरी, इक्लिप्स को स्टैगर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 डिग्री का रोटेशन करना है हमें। क्या यस। करना है? 60 डिग्री का रोटेशन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्लिप्स फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू द स्टैगर्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड में अगर आपको बनाना हो तो स्टैगर्ड में भी बना सकते हो, या एक और तरीका भी है स्टैगर्ड में कन्वर्ट करने का। ये इक्लिप्स फॉर्म हो गई, बनेगी डायरेक्ट तो हमारी इक्लिप्स ही बनेगी, लेकिन आप चाह रहे हो कि इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है, तो एक और अच्छा तरीका बताता हूं आपको। क्योंकि जब हम रोटेट करते हैं 60 डिग्री के बाद 120 होता है, 120 के बाद में 180 डिग्री होता है ना? 60 डिग्री के एंगल से रोटेट करने पे यही होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट आपको लेना है, तो आप एक काम करो, जो मिथाइल ग्रुप है ना इसको यहां पहुंचा दो, ऐसे एक वाई की फॉर्म में ड्रॉ कर लो। तो क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर? देखो, ये हमने चेंज नहीं किया, ये हमारा एज इट इज है, ये है एज इट इज। अब हमने क्या करा, तो 180 डिग्री पे इन्वर्ट कर दिया। तो हमारा जो 180 डिग्री पे हम करेंगे तो हमारा मिथाइल ग्रुप कहां चला जाएगा? यहां। और एच कहां चला जाएगा? जो अभी लेफ्ट में था 180 डिग्री कहां आएगा इसका? राइट में, एच। और ये ओ एच कहां जाएगा? लेफ्ट में, ओ एच, एच, एंड ये C2H5। ये हमारा बन गया स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म हो गया ये। क्या किया है मैंने? ये देखो, ये डॉटेड लाइन से जो मैंने दिखा रखा है ना, अभी हमने ये वाई की फॉर्म में लिखा था, डॉटेड लाइन से मैंने इन्वर्टेड वाई बना दिया। इन्वर्टेड वाई का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री इनका रिलेशन देखोगे आप, 180 डिग्री है, 180 डिग्री। और ये एच 180 डिग्री पे कहां होगा? यहाँ पे। 180 डिग्री पे ओ एच हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख लो, जो हमारा लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया। तो इस तरह से हमने इक्लिप्स फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। करना नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन तो सिर्फ इतना हो गया। अब जो ये इक्लिप्स फॉर्म हमने न्यूमान बना रखा है, न्यूमान को भी क्या आप कर सकते हो स्टैगर्ड फॉर्म में? कैसे करेंगे हम? सपोज करो मैंने पीछे वाले को एज इट इज रख दिया, मैंने ये फ्रंट वाले को चेंज कर दिया, तो 180 डिग्री कैसे होगा? 180, इन्वर्टेड वाई। 180 ऊपर हो जाए। हाँ, ये इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में। अभी हमने वाई की फॉर्म में लिख रखा, अभी इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में लिख देंगे। तो बैक वाले के तो पहले ग्रुप लिख दो, ऐसा ही जैसे उसमें लिखे होते। बैक वाले पे मिथाइल था, हमने एज इट इज लिख दिया। अब फ्रंट वाले को हमने चेंज करके क्या कर दिया, हमने यहां पर ले लिया, इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर दिया, स्टैगर्ड में कर दिया। तो हमारा C2H5 कहां चला गया? ऊपर, C2H5। ठीक है, और ये OH कहां गया? ये H आ गया यहाँ पे राइट में, और OH कहां पे आ गया? लेफ्ट में। ये लो, ये बन गया हमारा स्टैगर्ड फॉर्म। विजिबल है ना? दिख रहा है सबको? स्टैगर्ड। तो इस तरह से हम इक्लिप्स फॉर्म को स्टैगर्ड में और स्टैगर्ड को इक्लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जब भी हम फिशर से साहर्स बनाए या न्यूमान बनाए, वी हैव टू गेट दिस इन द इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म में ही बनेगा वो, क्योंकि ये होता ही इक्लिप्स फॉर्म में है। अब इसका अपोजिट करवाऊंगा मैं आपसे। अगर कोई स्ट्रक्चर आपको न्यूमान या फिर साहर्स रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर दिया हो और आपसे कोई बोले कि उसको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो, और बेसिक काम करेंगे, इसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।
ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने बनाई है स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर में कन्वर्ट करना है, इसमें ये फिशर में कन्वर्ट करना है। बताओ क्या स्टेप होने चाहिए, पहले ब्रीफ करो एक बार आप। ये साफ कर दूं नीचे वाला, क्या स्टेप होना चाहिए हमारा। सर वर्टिकल लाइन पे C2H5 और NH2 कर दिया सीधे ही, गड़बड़ करी होगी पक्का 100%, मैं बता रहा हूं आपको। आप पहले ये समझ लो, इसको समझो अच्छे से। ये इक्लिप्स फॉर्म है जो हमने बनाई है, इक्लिप्स्ड। और ये जो हमारी फॉर्म है ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। ये दोनों का डिफरेंस आप समझो ना पहले। भाई स्टैगर्ड फॉर्म से हम इक्लिप्स फॉर्म में डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो फिशर फॉर्म में जो बनेगा फिशर फॉर्मूला, ऊपर भी लिख लेना आप, सॉहार्स और न्यूमान टू, सॉहार्स और न्यूमान टू फिशर, हेडिंग डाल लेना है ना, सॉहार्स और न्यूमान फॉर्मूला टू फिशर। पहले तो ये समझ लो कि हमारा जो ये इक्लिप्स फॉर्म में ही बनना है फिशर, लेकिन हमारा तो यहाँ पे जो गिवन है वो तो स्टैगर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें इसको स्टैगर्ड से इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टैगर्ड को पहले इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया था, तरीका बताया था ना। सर रोटेट 180 डिग्री 180 डिग्री, ये तो देखो हमारा फ्रंट कार्बन, जैसे मैंने इसको 1 नंबर मार्क कर दिया, इसको नंबर 2 कर दिया। अब मैं पीछे वाले को रोटेट कर देता हूं 180 डिग्री, यहां लिख दिया मैंने 180 डिग्री। 180 डिग्री पे हमारा क्या होता है, ये अपोजिट हो जाएगा, ये इन्वर्टेड वाई बन गया, ये मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। तो स्ट्रक्चर जो हमारी बनेगी नई क्या होगी, ये, और जो हमारा ये वाला बॉन्ड है वो भी यहां आ जाएगा, हमें पता ही है इसका, ये बनेगी। अब ये हमारा कैसा फॉर्म है, इक्लिप्स्ड। अब ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट कर लो, फ्रंट वाले को हमने कुछ नहीं किया था, होल्ड करके रखेंगे। जब हम रोटेट करेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो एक कार्बन को तो पकड़ के रखेंगे ना, उसके ग्रुप्स को थोड़ी रोटेट करना है। अगर सबको साथ साथ कर दिया तो फिर वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू रोटेशन थोड़ी हुआ। इसको होल्ड कर लिया, पीछे वाले को 180 डिग्री पे घुमा दिया, तो हमारा जो C2H5 जो ऊपर था वो अब कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। NH2 जो लेफ्ट में था वो कहां चला जाएगा, राइट में। साइड। और जो H जो हमारा लेफ्ट में था वो कहां आ गया, राइट में। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, अब कर सकते हो। अब बहुत आसान है इसको करना। अब यहां से हम इसको कर देंगे इंटर कन्वर्ट, बिकॉज अब ये हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म आ गई जो कि हमें चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, मान लो मैंने मार्क कर दिया नंबर 1 इसको कर दिया, नंबर 2 इसको कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी 1 और नंबर 2 कर सकते हैं। मैंने इसको 1 नंबर किया हुआ था, 1 2, तो पहले मैं 1 नंबर के ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा। 1 पर NH2 क्या है, बिलो द प्लेन, तो ये बिलो द प्लेन हमारा होता है NH2, हमें पता है। H कहां पर है, राइट हैंड में, OH सॉरी, और H कहां पर है, लेफ्ट हैंड में। कर दिया सब्स्टिट्यूट। इसी तरह से आप आ जाओ नंबर 2 कार्बन पर, नंबर 2 कार्बन पर C2H5 कहां है, बिलो द प्लेन, कहां जाएगा, यहां C2H5, ठीक है। और NH2 कहां पर है, यहां पे राइट हैंड में, और ये H कहां पर है, लेफ्ट हैंड में। अब मुझे ये बताओ, क्या आपने यही बनाया है, यस सर यही बनाया था। यही बनाया था बस। तो जी सर। यही एक तरीका है जिससे आप आराम से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक स्ट्रक्चर और बताऊंगा मैं सिर्फ न्यूमान में, उसको भी आपको कन्वर्ट करके दिखाना। और अगर ये ऑलरेडी इक्लिप्स फॉर्म में होता तब हमें इसको स्टैगर उसमें
करने की जरूरत नहीं थी इक्लिप्स में, ये स्टैगर्ड में था इसलिए हमने किया। सॉरी डायरेक्टली कर सकते हैं। शिवानी, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो, एक बार रिपीट करो। डायरेक्टली कर सकते हैं, ये तो मैंने बनाया, दो बनाया। नहीं, हाँ हाँ, डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा इक्लिप्स फॉर्म में ही ड्रॉ होता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बी आर, ये है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये कायरल कार्बन हो गया, एक पीछे वाला हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है फिशर में, करके बताओ। सर पीछे वाले कार्बन पे CN लगा है वो। हाँ, ये राइट। CN है, CN। तो इसको चाहो तो आप पहले ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये अबाउट द प्लेन दिख रहा है, तो आप इसको बिलो द प्लेन वाले इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप इसको बिलो द प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जो ग्रुप से सारे 180 डिग्री पे चले जाएंगे। जो फ्रंट कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ आ गया, ठीक है, ये Br जो है वो इधर आ जाएगा, और जो हमारा H है सर हो गया। वो इधर आ जाएगा, और इधर जो हमारे पीछे वाले कार्बन पर जो मिथाइल था वो यहाँ आ गया। OH जो लेफ्ट हैंड में था वो हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड में, और जो CN है वो लेफ्ट हैंड में चला जाएगा। इससे भी बना सकते हो। अब तो इजी है बनाना, करेंगे तो क्या होगा, मिथाइल मिथाइल आ गए यहाँ, दोनों CH3 ऊपर नीचे, और सर HBr और सब CN Br और CN राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। राइट हैंड साइड Br H और OH एंड CN। राइट हैंड में कहाँ आ रहे हैं, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, Br और CN तो अपोजिट आ रहे हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको पहले स्टैगर्ड फॉर्म में करके कर दें? क्यों स्टैगर्ड में क्यों करेंगे भाई, स्टैगर्ड में तो बनता ही नहीं है ना, अभी तो मैं तुम्हें बार बार यही तो रिपीट कर रहा हूँ, स्टैगर्ड में तो बनेगा ही नहीं। इक्लिप्स फॉर्म में तो इक्लिप्स में बनेगा, मैंने इक्लिप्स को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे, वो इसलिए रोटेट किया है मैंने 180 डिग्री पे, सो दैट कि आपके जो ये ग्रुप्स हैं ये बिलो द प्लेन आ जाए, ये बिलो द प्लेन आ गए, बस इसको मैंने 180 डिग्री पे रोटेट किया। 180 का मतलब है जो ग्रुप लेफ्ट में वो सारे राइट में चले जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट में आ जाएंगे अपोजिट पोजीशन पे। ये मिथाइल ग्रुप था, मैंने इसको 180 पे किया तो ये यहाँ आ गया। Br था, इसको 180 पे किया तो ये यहाँ आ गया Br। ठीक है, H जो इधर था वो इधर आ जाएगा, ये आ गया। CN जो यहाँ था वो ये आ गया, Br इधर आ गया, ये OH। तो मैंने 180 डिग्री पे चेंज किया है, सो दैट आपके जो ये दोनों ग्रुप्स हैं वो कहाँ आ जाए, बिलो द प्लेन। बाकी अब आपके दिख रहे हैं Br और OH सेम साइड में है, CN और H सेम साइड में है, तो Br और CN की पोजीशन तो अपोजिट हो गई ना। ठीक है, समझ में आ गया।
यस सर। अब कर लोगे इंटर कन्वर्जेंस? यस सर। ठीक ठीक है, अटेंडेंस ले लेता हूं तुम्हारी, है ना? यस सर। यस सर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है ना? थर्टीन के बाद आज हुई है हमारी, आज 20 है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तुम्हारी 4901 901 प्रेजेंट सर। 902 अरुण 902 नहीं है? 904 904 अमन 906 अंकित प्रेजेंट सर। 907 प्रेजेंट सर। 913 Yes, sir. 914 यस सर। 915 यस सर सर। 04 रह गया। सर 04 रह गया था। मेरी गलती थी, है ना? नहीं सर, मेरी गलती थी, सॉरी। ठीक है। 915 917 प्रेजेंट सर। 918 Yes, sir. सर लगा दिया कि 4904 का? हाँ लगा दी। थैंक यू सर। अरे यार बच्चे ना पेन भी नहीं छोड़ते हैं हमारे यार, सारे पेनों को इधर उधर तोड़ के फेंक देते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं दूसरा लेके आता हूँ, है ना? uh, 918 918 Yes, sir. Yes, sir. 919 919 है या नहीं है? यस सर।